तो हम लोग आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigmatic surface, that is referred as pollination. ऐसा क्यों रिक्वायर्ड है? ऐसा इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें तो मेल गेमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है. दिस pollination helps in transfer of male gamete. Okay, third one, pollination. It is transfer of pollen from anther to stigma. Next point लिखिए. Pollination is required because male gamete in case of plant is non-motile. Male gamete in case of plant is non-motile. And they require pollen grain. For their transfer. They require pollen grain for their transfer. Next heading लिखिए, types of pollination. Types of pollination. बता चुका हूं आपको कि on the basis of source of pollen we divide pollination into 3 different types. Write down. On the basis of source of pollination, on the basis of source of pollen, not pollination. On the basis of source of pollen, pollination is divided into three different types. First is autogamy. Or self-pollination. Autogamy or self-pollination. In this, pollen from a flower is transferred to stigmatic surface of same flower. It transferred to stigmatic surface of same flower. ठीक है. Second, geitonogamy. 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 In this,
in this pollen from a flower, is transferred to stigmatic surface of another flower, transferred to stigmatic surface of another flower present on same plant, present on सेम प्लांट। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर हैं लेकिन फ्लावर अलग अलग है। ठीक है, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, but genetically it is self pollination, but genetically it is self pollination। मैंने कहा इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, but genetically it is self pollination। जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल इज मेज एंड कैस्टर। मेज, MEIZE, मेज, एंड कैस्टर, CASTOR। ठीक है। थर्ड इज जीनोगैमी, XENOGAMY, genogamy। In this pollen from a flower, pollen from a flower present on a plant, is transferred to stigmatic surface of another flower present on different plant, it is ecologically as well as genetically
genetically self-pollination. Self-pollination. Sorry, cross-pollination. Ecologically as well as genetically cross-pollination. ठीक है? Cross-pollination, not self-pollination. Next heading लिखिए. Contrivances for self-pollination or events which promotes self-pollination. Contrivances for self-pollination or events which promote self-pollination. माने ऐसा क्या क्या चीज है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है. ठीक है, 3-4 बताऊंगा. जो लास्ट वाला बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो सारे करेंगे लेकिन जो लास्ट वाला होगा ना सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट राइट डाउन बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन सेम फ्लावर. तो अगर सेम फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट, द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन विल बी हाई. रन here flower is bisexual. Here flower is bisexual, that is male and female reproductive part, male and female reproductive part is present, male and female reproductive part is present on same flower. ठीक है. सेकेंड, होमोगैमी. होमोगैमी, HOMOGAMY. होमोगैमी. होमोगैमी का मतलब क्या होता है? होमोगैमी का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, दे मेच्योर एट सेम टाइम. मतलब जब आंथर रप्चर करेगा उसी समय स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, मतलब कि वो पॉलन को रिसीव कर सकता है. मतलब दोनों का मेच्योर होने का टाइम जो है वो कोइंसाइड करेगा. इट विल प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन. थर्ड, होमोगैमी. इन दिस male and female reproductive part matures at same time. ठीक है. थर्ड, bud pollination. Bud pollination. बड पॉलिनेशन क्या होता है? बड पॉलिनेशन का मतलब होता है कि फ्लावर के ओपन होने से पहले पॉलिनेशन हो जाएगा. पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर. इट अकर्स इन पी, पाइसम सटाइवम, जो मेंडल ने वर्क किया था जिसपे. तो मेंडल ने जो चूज किया था पी प्लांट को, उसका एक रीजन ये भी था
कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर के ओपन होने से पहले हो जा रहा था. Write down. In this pollination takes place before opening of flower. Before opening of flower. Example P, Pisum. ठीक है. Fourth, क्लिस्टोगैमी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इवेंट विच प्रमोट सेल पॉलिनेशन. क्लिस्टोगैमी. तो क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ही ना हो. Are those flower which never opens? Are those flower which never opens? ठीक है. एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है. कॉमेलाइना, ऑक्सालिस, वॉयला, एराकिस. एराकिस इज मूंगफली, ग्राउंडनट. कॉमेलाइना, ऑक्सालिस, वॉयला, एराकिस, एक्सेट्रा. ठीक है. तो अगर मान लो फ्लावर क्लिस्टोगैमस है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, सारा कुछ अंदर हो जा रहा है. दैट मीन्स इट एश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट. मतलब कि पॉलिनेटिंग एजेंट रहे चाहे नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सीड प्रोड्यूस होगा अगर फ्लावर क्लिस्टोगैमस है. तो it assures seed set. It assures seed set even in the absence of pollinating agent. ठीक है ना. ये जो तीन प्लांट है, कॉमेलाइना, ऑक्सालिस एंड वॉयला, इन तीनों प्लांट में क्लिस्टोगैमस फ्लावर तो है ही है, जो कि फ्लावर कभी ओपन नहीं हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव चास्मोगैमस फ्लावर. चास्मोगैमस फ्लावर का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जो अपने आप को पॉलिनेटिंग एजेंट के सामने एक्सपोज कर दे, मतलब जो खुले. That means those flower which exposes themselves to pollinating agent. Write down. In case of Commelina, Oxalis and Viola, in case of Commelina, Oxalis and Viola, along with Clistogamous flower, Chasmogamous flowers are also present. CHASMOGAMOUS. Chasmogamous flowers are also present.
in bracket write down, are those flower which exposes them to, or which exposes themselves to, which exposes, मैंने कहा in case of Commelina, oxalis and Viola, in case of Commelina, oxalis and Viola, along with clistogamous flower, along with clistogamous flower, chasmogamous flowers, CHASMOGAMOUS, chasmogamous flowers are also present, in bracket write down, are those flowers which expose themselves, to pollinating agents, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, contrivances for cross pollination. Next heading is contrivances for cross pollination. Chasmogamous का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जो अपने आप को खोल दे पॉलिनेटिंग एजेंट के सामने, ठीक है। क्लिस्टोगैमस मतलब जो फ्लावर कभी नहीं खुलेगा, और चास्मोगैमस जो खुलता है, खुलेगा तो क्या होगा, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, इंसेक्ट हो गया, उसको विजिट कर सकता है। तो चास्मोगैमस का मतलब होता है दोज फ्लावर विच एक्सपोजेस देमसेल्फ टू पॉलिनेटिंग एजेंट्स। समझ में आया? ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग इज contrivances for cross pollination. Contrivances for cross pollination or events which promotes cross pollination. तीनों oxalis, viola and commelina, तीनों में दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, ऑक्सालिस, कॉमेलाइना एंड क्या कहते हैं उसको, वॉयला। इन तीनों में सर व्हाई डू वी से ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन देयर नो, पता नहीं क्या लिखा, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस। नेक्स्ट हेडिंग इज contrivances for cross pollination or event which promotes cross pollination. जो भी बड़ा सा क्वेश्चन था यार, मेरे को मैसेज में, पर्सनल मैसेज में कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। पता नहीं दिखा नहीं, पढ़ नहीं पाया ना। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फ्लावर जो है आइदर मेल है और या फीमेल है, ठीक है। फ्लावर इज आइदर मेल और फीमेल, वी कॉल इट यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। राइट ऑन। in this flower is
flower is either male or female. Flower is either male or female. ठीक है, सेकेंड लिखिए. डाइकोगैमी. डाइकोगैमी. डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है? डाइकोगैमी का मतलब होता है हियर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम. मतलब क्या हुआ, एक फ्लावर है, मान लो बाइसेक्सुअल है. अब उसमें जब आंथर रप्चर किया तो पॉलन रिलीज होगा, लेकिन उसका स्टिग्मा जो था वो मैच्योर नहीं हुआ पॉलन को रिसीव करने के लिए, या जब स्टिग्मा मैच्योर हुआ तो पॉलन रिलीज नहीं हुआ. ठीक है, थर्ड in this male and female reproductive part, in this male and female reproductive part, matures at different time. Matures at different time. That is मत लिखिए. if male reproductive part matures first, if male reproductive part matures first, it is known as protandry. Protandry. And if female reproductive part matures at same time, matures first, if female reproductive part matures first, it is known as protogyny. It is known as protogyny. ठीक है. Next, third, Harcogamy. Harcogamy. Harcogamy का मतलब क्या होता है कि there is a physical barrier which prevents cell pollination. For example, एक प्लांट होता है कैलोट्रोपस. इसमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, that is known as gynostigium, which prevents cell pollination. Here physical barrier is present. Here physical barrier is present which prevents cell pollination. Which prevents cell pollination. For example, in case of Calotropis, Calotropis,
For example, in case of Calotropis, a disc-shaped structure is present. A disc-shaped structure is present, known as gynostegium, which prevents self-pollination. ठीक है. Fourth, prepotency. Fourth is prepotency, POTENCY. प्रीपोटेंसी का मतलब क्या है, देखो समझ लो, बहुत सिंपल है. मान लो ये एक स्टिग्मेटिक सरफेस है, ठीक है. अब इस पे आके इस फ्लावर का पॉलन लैंड किया और दूसरे फ्लावर का भी पॉलन लैंड किया, ठीक है. इसका अपना पॉलन भी लैंड किया और दूसरे फ्लावर का भी पॉलन लैंड किया. तो आप क्या देखेंगे, जो दूसरे फ्लावर का पॉलन है उसका रेट ऑफ जर्मिनेशन जो है वो फास्ट है, और जो इसका अपना पॉलन है उसका रेट ऑफ जर्मिनेशन क्या है, स्लो है. ठीक है. तो मतलब क्या हुआ कि द रेट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ नॉन सेल्फ पॉलन इज फास्टर देन सेल्फ पॉलन. तो अगर नॉन सेल्फ पॉलन, जो दूसरे फ्लावर का पॉलन है, वो ज्यादा तेजी से जर्मिनेट कर रहा है, तो उसका पॉलन ट्यूब पहले पहुंचेगा और वो फर्टिलाइज करेगा, और जो दूसरा वाला पहुंचेगा तब तक तो फर्टिलाइज हो चुका होगा. दिस इज नोन एज प्रीपोटेंसी. दैट इज रेट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलन, नॉन सेल्फ पॉलन, नॉन सेल्फ मतलब दूसरे फ्लावर का, on stigmatic surface is more than that of self pollen. ठीक है. Pradhan, in this, a rate of germination of, in this, a rate of germination of non-self, NON, non-self pollen on stigmatic surface is more than the rate of germination of self pollen, more than a rate of germination of self pollen. Now, next, fifth, heterostyle. HETEROSTYLE, heterostyle. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें फ्लावर में जो स्टाइल का लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे मान लो एक ये फ्लावर है, तो इसका स्टाइल का लेंथ ये है, दूसरा फ्लावर इसका स्टाइल का लेंथ ये है, इसका स्टेमन का लेंथ ऐसे है और इसका स्टेमन का लेंथ ऐसे. ठीक है. ये वाला इसको पॉलिनेट करेगा और ये वाला इसको पॉलिनेट करेगा. क्यों? क्योंकि इनके मेच्योरिटी का टाइम क्या है, वो कोइंसाइड करेगा. ठीक है. तो डन. here style of different length is present.
Here style of different length is present. Which promotes here style of STYLE, style of different length is present, which promotes cross pollination, which promotes cross pollination. ठीक है. Sixth is self incompatibility. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. जैसे क्लिस्टोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करने में, वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है. अब इसको पहले समझ लेना. ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है. ठीक है, बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना और थोड़ा सा पढ़ना है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये कहता है कि सेल्फ पॉलन फेल्स टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मैटिक सरफेस और इट गेट्स रिजेक्टेड इन स्टाइलर रीजन. मैंने क्या कहा कि जो उसी फ्लावर का पॉलन, उसी प्लांट का, उसी फ्लावर का पॉलन होगा, प्लांट भी सेम हो सकता है, फ्लावर भी सेम हो सकता है, या तो उसका रिजेक्शन स्टिग्मैटिक सरफेस पे हो जाएगा, ठीक है, या उसका रिजेक्शन स्टाइलर रीजन में हो जाएगा. मतलब मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए ये हमने एक बना लिया, ठीक है, पिस्टल, या हमने दूसरा बना लिया. ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहां पे जो है, यहां पे रिजेक्शन जो है 8 स्टिग्मैटिक सरफेस है. ठीक है, और यहां पे जो है रिजेक्शन इन स्टाइलर रीजन. ठीक है, समझ लेना. अब मान लो यहां पे सेल्फ पॉलन आके लैंड किया, यहां भी सेल्फ पॉलन आके लैंड किया. ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये पॉलन यहां सरफेस से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा. रिजेक्शन यहीं पे है, राइट ऑन स्टिग्मैटिक सरफेस. यहां पे क्या है कि ये पॉलन तो जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, लेकिन ये पॉलन ट्यूब स्टाइल वाले रीजन को पार नहीं कर पाएगा. इट फेल्स टू ट्रांसवर्स दिस स्टाइलर रीजन. ठीक है, इट फेल्स टू दिस स्टाइलर रीजन, इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाता है. ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई दिस हैपेंस. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब देखो, पहले केस को समझो. पॉलन उड़ के आया, स्टिग्मा के सरफेस पे गिरा. ठीक है, जब ये स्टिग्मैटिक सरफेस पे पॉलन लैंड किया, ये हाइड्रेट होगा, मतलब इसको वाटर मिलेगा. जब ये हाइड्रेट होगा तो ये सर्टेन केमिकल रिलीज करेगा, जनरली प्रोटीन होता है. उसके रिस्पॉन्स में स्टिग्मा भी प्रोटीन रिलीज करेगा. जब इस स्टिग्मा को पता चलेगा कि भाई ये तो अपना ही पॉलन है, तो ये क्या करेगा, अपने सरफेस के नीचे ऐसे करके कैलोस का वॉल बना देगा. दिस इज योर कैलोस वॉल. तो जैसे ये कैलोस वॉल बना, ठीक है, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. ओके, तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि पॉलन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो कैलोस के वॉल को डिग्रेड कर दे। मान लीजिए कि यहां पे इसका जीनोटाइप S1 या S2 है, ठीक है, तो ये जो सेल्फ पॉलन है या तो ये S1 होगा या S2 होगा, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि यहां पे कोई दूसरा पॉलन आता है S3 S4 ऐसा कुछ आता है, ठीक है, दिस इज S3 दिस इज S4, तो जब यहां पे ये कैलोस वॉल बन जाएगा तो ये तो वह सेल्फ पॉलन नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो नॉन सेल्फ पॉलन के पास भी एबिलिटी नहीं है कि ये इसको क्रॉस कर पाए, ठीक है। दैट मीन्स रिजेक्शन व्हेन occurs at stigmatic surface, here what will happen, along with self pollen, non self pollen is also rejected। मैं आपको बहुत एब्रिज फॉर्म में बता रहा हूं, आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टिग्मेटिक सरफेस पे रिजेक्शन हो रहा है, whenever there is rejection at stigmatic surface, it occurs because of formation of callose wall just below the stigmatic surface। और जैसे ये callose wall बनेगा along with the self pollen, जो इसका अपना pollen है, non self pollen will be also rejected, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में मैंने कहा कि रिजेक्शन इन स्टाइलर रीजन, कहां पर रिजेक्शन हो रहा है, स्टाइलर रीजन में रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। होता क्या है, देखो, पॉलन लैंड किया सर, ये जर्मिनेट किया, ये जो स्टाइलर रीजन है, दिस रीजन इज हाइपोटोनिक फॉर सेल्फ पॉलन। मतलब जब ये पॉलन ट्यूब इधर ग्रो करेगा उसका अपना वाला पॉलन का, तो उस पॉलन ट्यूब के लिए ये रीजन क्या, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक मीडियम में कुछ जाएगा तो एंड ऑस्मोसिस होगा, इसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर क्या चला जाएगा, पानी, तो पॉलन ट्यूब रप्चर करेगा और वो रप्चर स्वेल करके रप्चर कर जाएगा, तो यहां पे पहुंचना था उसको पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। तो अगर मान लो ये S1 S2 था और ये सब भी S1 है या S2 है या S1 है कुछ भी है, तो ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये मीडियम जो है वो हाइपोटोनिक है फॉर सेल्फ पॉलन। अगर मान लीजिए यही अगर नॉन सेल्फ पॉलन होता, मान लीजिए ये S3 होता या S4 होता, ठीक है, तो ये जो है ये ग्रो कर जाता। क्यों ग्रो करता, बिकॉज फॉर नॉन सेल्फ पॉलन this region is आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होगा तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नॉन सेल्फ पॉलन यहां पे स्टाइलर रीजन को क्रॉस कर जाएगा, जबकि सेल्फ पॉलन जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि मीडियम हाइपोटोनिक हो गया। नहीं समझ में आया, मैं ये मान के चल रहा आपको नहीं समझ में आया। अरे एस जीन का टाइप है, एलील का टाइप है। मैं आपको सिंपल पहले एक दो लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा समझाता हूँ। पहले लिख लीजिए इसको, एक दो लाइन लिखिए, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ओके, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी in this self pollen fails to germinate and it is rejected. It is rejected
rejection can take place. Rejection can take place either on stigmatic surface or in styler region, either in stigmatic surface, either on stigmatic surface or in styler region. ठीक है, it is genetically determined. It is genetically determined, मतलब genes involved होते हैं इसमें. It is genetically determined. ठीक है, when rejection takes place, when rejection takes place on stigmatic surface, when rejection takes place on stigmatic surface, along with self pollen, non-self pollen is also rejected. Non-self pollen is also rejected. Whereas when rejection takes place, in styler region, only self pollens are rejected. Only self pollens are rejected. ठीक है सर, नॉन सेल्फ पॉलन की कंपोजिशन तो डिफरेंट. अब जो भी है मैं इसको अब दोबारा समझा दे रहा हूं आसान शब्दों में. आपसे कोई, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा, आपके लेवल का चीज नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूं. देखो, मैंने पहले कहा कि यहाँ पर रिजेक्शन जो है वो स्टिग्मा के सरफेस पे हो रहा. होता क्या है कि जैसे सेल्फ पॉलन यहाँ पे लैंड करेगा वो हाइड्रेट होगा, उसको वाटर मिलेगा, वो केमिकल रिलीज करेगा. केमिकल जनरली प्रोटीन होता है. उसके रिस्पॉन्स में ये स्टिग्मेटिक सरफेस भी प्रोटीन रिलीज करेगा. दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा. जब ये पता चल जाएगा कि ये अपना ही पॉलन है तो ये क्या करेगा, अपने वॉल एक बना लेगा कैलोस का स्टिग्मेटिक सरफेस के नीचे. ये जो कैलोस वॉल है ये पॉलन डिग्रेड नहीं कर सकता तो आगे नहीं बढ़ पाएगा. अगर इसके बाद या इसके साथ ही अगर नॉन सेल्फ पॉलन भी आ जाए, ठीक है, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पास भी एबिलिटी नहीं है कि इस कैलोस वॉल को डिग्रेड कर पाए. तो यहाँ पे क्या है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो दोनों के दोनों पॉलन, अगर नॉन सेल्फ भी आता तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा. मतलब ऑल आर रिजेक्टेड. इसको ये हो गया पहला. यहाँ दूसरे में मैंने कहा कि यहाँ पर रिजेक्शन जो है वो स्टाइलर रीजन में हो रहा है. पहले तो सेल्फ और नॉन सेल्फ पॉलिसी, ये जो S1 S2 है ना, बेसिकली मैंने बताया कि जीन है, मतलब स्पोरोफिटिक टिश्यू का जो होगा डिप्लॉयड होगा तो जीन पेयर होगा, तो एक S मान लिया, S1 मान लिया, एक S2 मान लिया. अब यहाँ पे देखो सेल्फ पॉलन S1 या S2 होगा क्योंकि हैप्लॉइड होगा. ये जर्मिनेट तो करेगा, लेकिन जब इसका पॉलन ट्यूब यहाँ स्टाइलर रीजन में पहुंचेगा तो उसके लिए ये जो मीडियम है स्टाइलर रीजन का वो हाइपोटोनिक है. हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि पानी अंदर जाएगा पॉलन ट्यूब के, तो पॉलन ट्यूब स्वेल करेगा और वो क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा. ठीक है. जबकि नॉन सेल्फ पॉलन के लिए ये मीडियम जो है, ये स्टाइलर रीजन जो है
वो आइसोटोनिक है। तो ये इधर एंटर करेगा तो उसके लिए तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0 तो आराम से आ जाएगा अंदर और ये यहाँ पे फर्टिलाइज कर देगा। अरे नॉन सेल्फ पॉलन के लिए क्या बोल रहे यार, पढ़ नहीं पा रहा, इतने बड़े बड़े लिख रहे हो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे से अलग से पूछ लेना। तो यहाँ क्या नॉन सेल्फ पॉलन पहुंच जाएगा, तो यहाँ रिजेक्शन सिर्फ किसका हो रहा है, सेल्फ पॉलन का। यहाँ पे किसका हो रहा है, दोनों का हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लो। सबके लिए आइसोटोनिक कैसे, सारे नॉन सेल्फ के लिए आइसोटोनिक होगा, नॉन सेल्फ जो उसको पॉलिनेट कर सकता है, सेल्फ के लिए नहीं होगा। अरे नेचर है भाई, जेनेटिकली डिटरमाइंड है, उस फ्लावर को पता है कि उसको किस प्लांट पॉलन से पॉलिनेट होना है। हम नेचर को डिजाइन थोड़ा ना करते हैं, हम तो नेचर से खेलते हैं। कंपोजिशन तो सबकी अलग ही होगी। किस चीज का कंपोजिशन भाई, शुगर के कारण होता है, शुगर मीडियम होता है। मैं उतने डिटेल में जाना नहीं चाहता, आपके मतलब की चीज नहीं है उतने डिटेल में जाना। पॉलिनेशन हमेशा मतलब थोड़ा ना होता है कि पॉलिनेशन का ये थोड़ा मतलब है कि हमेशा राइट टाइप पॉलिन ही लैंड करेगा। हवा चल रही है, जो पॉलिन था पहुंच गया, सही होगा तो पॉलिनेट कर देगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा वो। पॉलिनेशन डू नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलिन स्टिग्मेटिक सरफेस, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में। ठीक है, पॉलिनेशन का ये गारंटी थोड़ा ना कि हमेशा सही वाला पॉलिन ही वहां लैंड करेगा। बना लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।